Well, hello and welcome to this very special episode of the Game Time podcast. This week we are going to talk about India taking on Pakistan in the Cricket World Cup in India. I mean, it's the mother of all clashes, the father of all rivalries, and whatever else you want to call it. It's going to be a clash that is going to, I don't know, kitne millions will be watching, but only a select few will be in Ahmedabad to watch the encounter live at the Narendra Modi Stadium. One of those lucky people is Devendra Pandey, our colleague from the Indian Express, who's joining us. But before that, also joining us is Mihir Vasavda, our co-host, who's been missing for the last two episodes because he was in China covering the Asian Games. He's maybe not caught too much cricket in China, but now that he's in India, a lot of cricket is going to happen with, the World Cup happening and cricket making its bid to get into the Olympics at Los Angeles. Mihir, welcome, and Devin bhai, obviously welcome to the show. Mihir, you want to start? Thanks, Amit. Been away for the last 2 weeks, and I'll be honest, मैं जब China में था तभी actually there was no hint at all that the Cricket World Cup has started. Absolutely no hint. Not just because you were caught in that Asian Games grind, because वहाँ पर कुछ coverage नहीं है cricket का. I mean, अगर तो हम दूसरे कोई देश में रहते, कुछ नहीं तो छोटा सा mention happens somewhere, but there is absolutely nothing. So if you were actually living under a rock, अगर जो आप China में हो vis-a-vis the Cricket World Cup, and the moment I landed here, it's everywhere. यहाँ पर थोड़ा सा initially लगा कि यार buzz कम है and all those things, but as you kind of get into the groove, you realize कि it's right there. And like you said, mother, father, आपने सब बोल दिया of rivalries and everything. Here it is. The moment the schedule was announced, I think ये मैच के लिए बहुत ज्यादा लोग वेट कर रहे थे. I think we should try and cut out the hype. I mean, look at the match in a very objective manner, but we'll try. It's a tough thing given the backdrop of this match and everything that's been happening in the build-up. So yeah, it'll be fun nevertheless. Devin bhai, you are somebody who's been in, tracking the Indian team from city to city. I mean, you have the onerous task of going to 9 cities with the Indian team, and depending on group stage के बाद क्या होता है, even more maybe. How is that panning out for you, the hectic travel? Yeah, hectic travel तो रहेगा, Amit. But for me, World Cup probably will end for many people tomorrow. क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा. मेनी पीपल जितना बस क्रिएट हुआ है वो एक मैच को लेके ही हुआ है. तो फॉर मेनी द वर्ल्ड कप विल बी ओवर. बट हम लोग को ऑफ कोर्स विल बी ऑन रोड. वी विल बी ट्रैवलिंग फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 month नाउ. लॉट ऑफ हेक्टिक ट्रैवल, स्पेशली अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको वो लग्जरी नहीं मिलता जो प्लेयर्स को चार्टर्ड फ्लाइट में मिलता है. सो द लॉट ऑफ ट्रैवल एंड प्लानिंग गोइंग अराउंड. बट रियली गुड फन. अच्छा, होप अच्छे मैचेस हों जैसा होना चाहिए. Then by again, like of course we'll come to the India-Pakistan match, but एक थोड़ा सा sense दे देंगे of what you've observed India के first 2 matches में, not just in terms of results. Of course, it's been a great start to India's campaign, but जो हमें field पर नहीं दिखता है, field के बाहर का चीजें जो हमें नहीं दिखता है, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या हो रहा है माहौल के हिसाब से, कैसा एटमॉस्फेयर है वहां पर, प्लेयर्स को कैसा रिसेप्शन मिल रहा है, जस्ट अबाउट व्हाटएवर यू सीन ऑफ द फील्ड. या आई मीन सी ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड कप मैच है एंड प्लेइंग सो नॉन स्टॉप क्रिकेट. ये एवरीवेयर वी हैव वेंट और प्लेयर्स आर गोइंग. उनको एक ही वो रहता है कि सर इस बार वर्ल्ड कप जीतना है, इस बार वर्ल्ड कप जीतना है. रोहित शर्मा, अगर आपने इंटरव्यू पढ़ा रहेगा इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने भी यही कहा था हमें कि हम लोग जहां जाने तो बस भाई, चाहे एयरपोर्ट हो या होटल हो, एक ही रिक्वेस्ट आ रही कि सर बस वर्ल्ड कप जीतना है करके. तो बस तो काफी हैवी है. स्पेशली अब चेन्नई में पहला मैच हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान दिल्ली में हुआ. अब जो सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का मैच होने वाला इंडिया पाकिस्तान में, अभी तो अहमदाबाद में हूँ. काफी एनर्जेटिक है. आप जब स्टेडियम के बाहर पूरा एकदम पुलिस की छावनी बन गई है. कल पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग भी की हल्का सा, तो पूरी छावनी बना दिया है कि ये मैच कैसे भी अच्छे से जाए करके. कल ओपनिंग सेरेमनी भी रखा गया है. तो बस हाई है. और पर एक समस्या ये वर्ल्ड कप का ये कि ना, जो बड़े मैचेस में है ना, उनको लेके ज्यादा ही एक्साइटमेंट है, पर छोटे मैचेस में इतना दिखा नहीं है. जैसे इंडिया अफगानिस्तान में देखा अगर आपने होगा तो कुछ स्टैंड खाली दिखे दिल्ली में, तो विच वाज बिट सरप्राइजिंग कि ये खाली थे. अगर डिमांड है, लोग जैसे गाली मार रहे हैं ट्विटर स्पेस पे, पर लेकिन वैसा सीट भी खाली क्यों है करके, तो वो एक क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा है. Then by not just this, मतलब the empty stadiums, I think थोड़ा सा ticketing को लेके भी concerns है, थोड़ा सा
स्टैंड्स को भी लेके है, बट ऑब्वियसली अगर आप 1,30,000 के स्टेडियम में अगर देखेंगे तो अगर 48,000 लोग भी आते हैं तो फिर इट विल लुक थोड़ा सा एम्प्टी। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस क्या थोड़ा सा मेजर्स लेने पड़ रहे हैं सिक्योरिटी वाइज, बिकॉज हमने देखा जब अभी पाकिस्तान टीम व्हेन दे ट्रैवल्ड फ्रॉम हैदराबाद टू अहमदाबाद, आई बिलीव देवर वो पूरा फ्लाइट ही उनके लिए खाली था। तो वो सारी चीजें भी सिक्योरिटी एजेंसीज को करनी पड़ रही है जस्ट सो दैट कोई इश्यूज ना हो जाए इन द एयर एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो बीसीसीआई ने सबके लिए चार्टर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग किया है। हाँ, उनको अलग चेक इन और चेकआउट का रूल एयरपोर्ट पे दिया है करके, ताकि उनको हैसल ना करे। तो फ्लाइट सारी टीमों के लिए बीसीसीआई ने चार्टर रखा है, तो कोई ऐसा नहीं जा रहा है कमर्शियल फ्लाइट लेना जैसे हम आईपीएल में लेते हैं, तो ऐसा है ही नहीं। हाँ, पर उनके लिए अलग मतलब सिक्योरिटी पाकिस्तान टीम पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि अभी हैदराबाद से यहाँ आए करके उनके लिए डबल दी सिक्योरिटी लगा, चाहे होटल हो जहाँ रुके हो, चाहे एयरपोर्ट हो। क्योंकि हम लोग ओपनिंग मैच के लिए आए थे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के लिए, तो इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। पर जब कल गए देखने के लिए तो रियली पूरा कॉर्डन ऑफ किया, पूरा बहुत ज्यादा ही आई थिंक सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, क्योंकि उनको पता है 1,30,000 लोग आएंगे, यही मैच का एक एक्साइटमेंट है, तो वो भी मद्देनजर ध्यान रखते हुए करके पूरी सिक्योरिटी टाइटन ऑफ की गई। इन आई फील बैड यार, जो भी कल मैच देखने जाएगा स्पेक्टेटर्स उनके लिए, बिकॉज दे हैव टू गो थ्रू हेल वहां पर। आई डोंट नो, अगर जो 1:30 स्टार्ट है राइट मैच का, तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग बिफोर दे हैव टू रीच द स्टेडियम, कितना लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी उन्हें चेक करना होगा, क्या क्या अंदर अलाउ होगा। आई एम श्योर पानी लेकर जाने में भी दिक्कत होगी, वेदर दे हैव वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल। तो थोड़ा सा आई डोंट नो, आई फील मिक्स्ड अबाउट। आई मीन ऑफ कोर्स इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ इट, बट अगर जो आप स्पेक्टेटर हो कल के मैच के लिए जाने के लिए, देन गुड लक टू यू आई गेस। नहीं, उसमें क्लियर कर दिया है, गेट 10 बजे खुल जाएंगे, मैच 1:30 बजे का है। और पहली बार ऐसा होगा कि बीसीसीआई ने प्लान किया है कि ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई है, एक म्यूजिकल काइंड ऑफ शो रख दिया गया है। अरिजीत सिंह आएंगे, शंकर महादेवन है, और भी सिंगर्स आके गाना गा के जाएंगे। हाँ, बट रीचिंग जो भी है, अगर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो भी अगर आप अहमदाबाद आ रहे हैं, 2-3 चीज का ध्यान रखें। स्टेडियम में बहुत कुछ अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो पुलिस ऊपर वाले हो नीचे वाले को डायरेक्शन देते हैं, नीचे वाले अलग करते हैं। जैसे मुझे याद है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में आदमी ईयरफोन लेके जाना चाहता था अपना, उसको मना कर दिया, बोला नहीं नहीं अलाउड है। तो आदमी झगड़ा किया कि कहाँ लिखा है ये, और वो पुलिस पाने वाला बोलता नहीं लिखा है, आप पढ़ लो। वो पढ़ने को भी तैयार नहीं है, तो आपको फिर वो जद्दोजहद होगी। पानी आप ऑफकोर्स पानी तो फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप सिक्के मत लेके जाइए, पर्स उस तरह के हार्ड कैश लेके जाइएगा, और कोई भी ऐसा लिपस्टिक, मावा, लाइटर वेटर ये सब मत लेके जाइएगा। तो वो है, और जल्दी पहुंच रहा है। इस स्टेडियम में सिर्फ 4 द्वार हैं, तो एक चौथा सिर्फ वीवीआईपी रखा गया है, तीसरा जिनके पास कार पास है उनके लिए है। आप अगर फैंस हैं, नॉर्मल टिकट है, तो गेट नंबर 1 और 2 है, और काफी लंबी लाइन रहेगी। 10 बजे गेट खुल जाएंगी, आप थोड़ा पहले आने की ट्राई कीजिए। मेंटली आप रेडी रहिए कि आप 1 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे। कैप लेके आइए, धूप बहुत है यहाँ पे, सनक्रीम आप लगा के आइए, वो अंडरग्राउंड में अलाउ नहीं करेंगे। तो वो सब चीज का ध्यान रखें। अगर बच्चे हैं तो पानी उन्हीं साथ में लेके रख सकते हो, छोटा बोतल आप लेके आ सकते हैं। और देखिए, ख्याल रखें दूसरे बच्चों का, ठीक है। और बाथरूम में तो बाकी सब यहाँ क्लीन ही है, जो कल मैं रेकी करके आया हूँ। तो जो भी आ रहा है पहले से प्लानिंग करके आई। काफी इंपॉर्टेंट टिप्स यार, बट इसमें मैं वही एक्चुअली कह रहा था कि आई मीन थोड़ा सा आई एम सॉरी अगर जो मैं ड्रिफ्ट कर लूंगा चाइना की तरफ, बट अमित इट वाज इंटरेस्टिंग। यू हैव आल्सो बीन, देवेन आल्सो हैज बीन टू स्टेडियम्स आउटसाइड इंडिया, और एक चीज जो यहाँ पर स्टैंड आउट कर गई थी फॉर मी, यू नो, इज आई मीन देखो यार, पॉपुलेशन दोनों कंट्री का मोर और लेस सेम ही है, सेम प्रॉब्लम्स दैट हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज फेस। बट जो एक चीज दैट दे हैड बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल कमिंग टू द स्टेडियम्स इज की I mean, not everyone is going to know कि क्या अलाउड है क्या नहीं है. So they had proper facilities जहां पर आप आपकी छोटी सी छोटी चीजें वहां पर आप रख सकते हो लॉकर में, and while just going back you can take it with you. And आप अगर जो as spectator जा रहे हो, for example at the athletic stadiums at the closing and opening ceremonies of the Asian Games, उन्होंने हर एक सीट पे ऑफ दी 82,000 सीटर जो ओलंपिक स्टेडियम है हंगजाओ का, एवरी सीट हैड अ बैग जिसके अंदर उन्होंने बेसिक खाना रखा था, 2 बॉटल्स पानी की रखी थी, उन्होंने टिश्यूज रखे थे, वेट वाइप्स रखे थे, दे हैड गिवन आई थिंक बाम ऑयल की एक छोटी सी बॉटल थी. सो इट वॉजंट अ बिग जेस्चर बट इट वॉज इनफ कि आप अगर जो 8 घंटे के लिए स्टेडियम पे हो आप एटलीस्ट भूखे और प्यासे नहीं रहोगे. इतना तो आई थिंक हम कर ही सकते हैं एज होस्ट्स. नहीं, मेरी उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम वो होती है, जैसे अगर आप इंडिया और चाइना, ठीक है, पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव आप देख लीजिए ना, चाइना को इतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है जितना कंपेयर टू इंडिया ये सब गेम के लिए. अभी आपने जो रिपोर्ट्स यहाँ पढ़े रहेंगे तो परसों किसी को अहमदाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है कि हम बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे इंडिया पाकिस्तान मैचेस के टाइम पे, तो सिक्योरिटी रिस्क हैवी रहेगा. हाँ, इसमें ये कर सकते थे, जैसे
बीसीसीआई कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके हर एक जगह एक बैग छोटा सा रख दे, छोटा एक पानी का बोतल जो आप बता रहे हैं, वो बीसीसीआई अपनी तरफ से या आईसीसी अपनी तरफ से कर सकते, तो वो एक अरेंजमेंट करना। मुझे याद है कि जैसे स्टेडियम के बाहर जो घर हैं, वो क्या करते हैं कि इस समय कमाते हैं, वो 100 आपसे 100-150 रुपए ले लेंगे और कहेंगे अपना सामान रख लीजिए, जाते समय आप लेके जाइएगा। तो उनके लिए भी एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है यहाँ पर। देवेन भाई, और अहमदाबाद में जो अभी आप जैसे बता रहे हैं कि यू कैन सी दैट वर्ल्ड कप का मूड थोड़ा सा अभी माहौल बन रहा है। ऑब्वियसली कल परफॉर्मर्स होंगे, ऑल ऑफ दैट विल बी देयर, बट बिसाइड्स दैट क्या देख रहे हैं आप अहमदाबाद में जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है अबाउट फ्रॉम द क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव? आर पीपल एक्साइटेड टू वॉच द क्रिकेट पर से, या फिर इट्स ओनली दैट होल इंडिया पाकिस्तान राइवलरी? अमित, फ्रैंकली ना बहुत लोगों को पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का नाम नहीं पता, एक्सेप्ट बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और हैरिस रॉफ को हम ऐड कर सकते हैं इसमें। ये जो मैच है पूरा होल इंडिया वैसे पाकिस्तान राइवलरी को लेके, वैसे भी हम कम खेलते हैं, अभी ऑफ कोर्स एशिया कप में खेल के आए, तो ये इट्स मोर ऑफ पेट्रियोटिकल टाइप ऑफ कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हैं, देन क्रिकेटिंग पर वो एक वो रहेगा और कुछ नहीं। जो मुझे महसूस हुआ है, क्योंकि इंडिया को बस जीतना है कैसे भी करके, वो ध्यान दिया जा रहा है। एक श्रीराम वीरा ने अच्छा पीस लिखा है, जस्ट कैप्चरिंग द मूड ऑफ द सिटी, और उसमें आई थिंक देवन भाई आप आई थिंक श्रीराम के साथ ही रहेंगे, जो ओल्ड सिटी और एलिस ब्रिज के दोनों तरफ की जो सिटीज है उसका बहुत ही सुपर्ब कॉन्ट्रास्ट ही हैज ब्रॉट आउट। एंड एक जो एक हेजिटेशन है विथ अहमदाबाद बीइंग एज अ वेन्यू फॉर दिस मैच, अगर जो पुरानी चीजें ले लो, फ्रॉम द रायट्स टू द कम्युनल स्पॉट्स ऑफ द सिटी टू द फूड कल्चर टू द सेफ्टी, गांधी आश्रम, सारा कुछ एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है कि पाकिस्तानीज आर वेलकम इन द सिटी, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव बीन वेलकम प्रीटी नाइसली इन द सिटी, बट एक अंडरलाइन टेंशन देवन भाई है इन द सिटी। अगर जो इन केस इंडिया हार गया ये मैच, विच विल बी द फर्स्ट डिफीट टू पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप, तो क्या होगा इन द सेंस कि कैसा रिसेप्शन रहेगा टुवर्ड्स द प्लेयर्स, और पता नहीं माहौल किस टाइप का होगा। मेन माहौल का तो समय पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम लोगों को बहुत गाली पड़ेगी, क्योंकि आप अभी से प्रिडिक्ट करोगे पाकिस्तान अगर जीत गया तो सोचो क्या हाल होने वाला है। आपको पकड़ के ढूंढेंगे कि भाई कौन ही आदमी था जो सब प्रिडिक्ट कर रहा है बिफोर द गेम। मैं तो चाइना में ही हूँ। हाँ फिर ठीक है, होंगजोंग में है मीर वसावड़ा जो ये सुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ इस पे, क्योंकि ऑफकोर्स सब चाहेंगे यार इंडिया मैच इंडिया जीते करके। 1,30,000 लोग जहाँ होंगे तो एवरीबडी विल एक्सपेक्ट कि अच्छा मैच हो इसमें, तो कीपिंग फिंगर क्रॉस, इंडिया जैसे लास्ट 2 मैच खेली है विल हैव अपर हैंड। जैसे रोहित का फॉर्म आया है और टीम बैलेंस दिख रही है, बैलेंस के हिसाब से इंडियन टीम मच बेटर है, और एट द एंड ऑफ ड डे होम ग्राउंड रहेगा। अब पाकिस्तान फैंस नहीं है, मतलब आए नहीं बेचारे, क्योंकि वीजा बहुत लोगों को नहीं मिला है, जर्नलिस्टों को अभी कुछ मिला है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा कि जहाँ 1,30,000 सिर्फ इंडियन टीम को सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेंटल, आपको जैसे प्रोफेशनल है नो डाउट अबाउट इट, पर थोड़ा सा मेंटल रहेगा, क्योंकि 1,30,000 चीयर करेंगे। एज द माहिल भाई जिसने श्रीराम वीरा से बात की थी, जो एक फूड शॉप चलाते हैं पुराने सिटी में, ओल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद में, उन्होंने कहा कि यार 1.5 लाख पीपल पैक्ड इन द स्टेडियम शाउटिंग आई कांट सी हाउ पाकिस्तान विल हैंडल द प्रेशर। तो आई थिंक वो बात तो आपकी सही है, बहुत मुश्किल लग रहा है उन्हें ये प्रेशर में काम करते हुए। बट अमित, शैल वी मूव टू द क्रिकेटिंग बिट? Yeah, no, but Mihir, I think it's also significant na कि India and Pakistan are playing in Ahmedabad. Ahmedabad is touted to be maybe in the fray to host an Olympics in 2036. Simultaneously, today or one of these coming days, cricket might make it to the Olympics at LA 2036. The IOC ka bigwigs, the jo Olympic ke organizers are, they are all in India. So probably all of these things may be interlinked to each other. Like cricket may be making to the Olympics, India may be getting to host its, preparing a bid of sorts. So this game also has that, the World Cup in itself, but the game also, I think, has that sort of a relevance to it, maybe. Yeah, great point. And I think, the International Olympic Committee President, Thomas Bach, is in Mumbai. It's interesting because Prime Minister Narendra Modi will be himself, flying down to Bombay to inaugurate the IOC session. और IOC session एक आप समझ लीजिए G20 of sports है, तो he'll be inaugurating it. साथ ही साथ अमित, you spoke to the IOC president, जिसने बहुत ही directly, indirectly आप कह दिया कि cricket will be at the Olympics, and फिर 2036 में India hosting the Olympics at Ahmedabad with the Narendra Modi Stadium being a centerpiece. तो अगर जो हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद एक तरह से वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द पिच टू होस्ट द ओलंपिक्स कुड बी द इंडिया पाकिस्तान मैच एज वेल. Yeah, absolutely. Devan bhai, just now moving on to thoda sa rest of the World Cup, what are you seeing from the other countries? We are seeing Australia काफी troubles में है. We are seeing that South Africa is doing decently at least. तो
away from the Indian team, Pakistan team, what are you seeing from the rest of the year and क्या chances लग रहे हैं बाकी टीम्स के? यहाँ काफी अपसेट हुई, इवन वापस सरप्राइज की ऑस्ट्रेलिया हार गया करके, और जैसे पाकिस्तान ने चेस किया अगेंस्ट श्रीलंका, इतना हाई स्कोरिंग गेम। अभी ऑफकोर्स बहुत अर्ली लगा अमित इस पे बोलना, क्योंकि जस्ट दो मैचेस ही हुए हैं, दिस 7 मैचेस टू गो, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट गोइंग अहेड। टीम भी थोड़ा सेटल होती रहेगी, एक्टिवलाइज होती रहेगी, क्योंकि थोड़े आप देखो तो वेदर धीरे धीरे एक्सट्रीम है हर जगह, कुछ जगह ज्यादा ही धूप है, कुछ जगह नॉर्मल वेदर है। अभी जैसे धर्मशाला में बात कर रहा था, वहाँ स्नोफॉल हुआ है, और सडनली आप चेन्नई में खेलोगे जहाँ एकदम डैम हीट होने वाला है, तो वो सब इश्यूज रहेगा। लेकिन हाँ, ये वर्ल्ड कप थोड़ा अपसेट दिख रहा है। टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया अभी तक पिकअप नहीं कर पाई 2 मैच पे, प्रॉब्ली गोइंग अहेड दे विल बी ट्राई टू पुश द पेडल, कि नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा, 4 ही टीम क्वालिफाई कर पाएंगी। और गोइंग अहेड ऐसा भी हम देखेंगे कि हर वर्ल्ड कप में देखा गया है कोई ना कोई अपसेट हुए हैं, तो मिनोज एक अपसेट करते हैं, नेदरलैंड हो चाहे हम अफगानिस्तान में इसमें ले सकते हैं, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट स्टिल 2 ही मैच हुए हैं, तो इट्स लॉन्ग वे टू गो। नहीं भाई, एक चीज, केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है, ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जस्ट अबाउट द वैरायटी ऑफ पिचेस ना। मतलब आप एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू जा रहे हो और कंडीशंस टोटली चेंज हो रहे हैं। एक जहां पर स्पिन बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है, दूसरे में पेसर्स है, एक जगह बैटिंग पैराडाइज है, एक जगह विकेट स्लो है, वेदर चेंज हो रहा है फ्रॉम सिटी टू सिटी। फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज इंडिया 9 सिटीज में खेल रहा है। मेरे इतना चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि ना ये लोग आईपीएल में वैसे ही इतना ट्रैवल करते हैं, सिटी टू सिटी खेलते ही हैं। तो अब चेन्नई और कलकत्ता जाएंगे, स्लो मिलेगा, वानखेड़े आपको थोड़ा बाउंसी मिलेगा, तो ये सब इनको आदत है। इनको बेसिकली इंडियन टीम का है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिटनेस, कॉम्बिनेशन में इनका ठीक चला है, लड़के फिट हों और राइट टाइम पे सब उनका क्लिक हो। खाली इनको मेजर चैलेंज मुझे यहाँ से दिख रहा है और नॉकआउट्स में होगा। बाकी इंडिया गोइंग एट दे विल गो टू सेमीज, कोई डाउट अबाउट नहीं, क्योंकि ये सब बच्चे होम कंडीशन में खेल रहे हैं, तो सब अपर हैंड है, सबको पता है कंडीशन कैसा होने वाला है, थैंक्स टू आईपीएल, क्योंकि ये लोग 2-2 महीना इसी कंडीशन में सब खेलते आए, तो उनके लिए कंडीशन इज वोंट बी चैलेंज मच, बट वही रहेगा कि फिटनेस इनका टीम का कितना फिट है, और आगे खाली जब नॉकआउट्स में जाएंगे, एक खराब दिन पूरे टूर्नामेंट में ना आए बस, तो ये लोग दे विल गो थ्रू अहेड। Devin bhai, the other question is about Shubman Gill, because he's going to probably miss the India-Pakistan game as well. He's obviously missed the first couple of games, but what are his chances now? Is he recovering well? उसका थोड़ा health का update शायद आपके पास हो? कल वो बैटिंग के नेट्स पे, पर वही प्रॉब्लम है कि ये जो इतनी धूप में आफ्टर डेंगू बॉडी कैन टेक अप दैट कि नहीं, वो मेडिकल टीम जांच कर रही है कि इसको सीधा मैच में डालना है कि नहीं डालना है। मैं अभी भी श्योर, जो मेरी बात हुई कि लोग 1 वीक का टाइम लेंगे, तो गोइंग एट एक और मैच शुभमन गिल मिस करे और प्रॉब्ली बांग्लादेश तक आए, या तो जो पुणे, इसके बाद हम पुणे खेलने वाले अगेंस्ट बांग्लादेश, शायद वो भी मिस हो सकता है। पर टीम ज्यादा पुश भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम लोग आज मेन मैच पाकिस्तान के साथ है, वो जीत जाते हैं, फिर बांग्लादेश है, तो एक कुशन मिल जाएगा। उसके बाद तो फिर थोड़ा नेक्स्ट डे धर्मशाला है, धर्मशाला में न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं, तो एक टीम इतनी घाई भी नहीं करेगी, क्योंकि उसका रिपोर्टेशन हेवी भी हो सकता है। बेस्ट है कि वो कल बैटिंग किया उन्होंने नेट्स पे, उन्होंने 1 घंटा थ्रो डाउन, जो नुआन है इंडियन टीम पे, वो पहले फ्लाई कर चुके थे टीम दिल्ली से, तो उन्होंने उनको थ्रो डाउन दिया, 1 घंटा उन्होंने बैटिंग किया। पर वही कि मैच फिट है कि नहीं, नेट्स में बैटिंग करना 6 में और मैच फिटनेस होना बहुत डिफरेंट रहेगा। पर देवेन भाई, आपने एक पॉइंट रेज किया कि अभी for these Indian players at least traveling from one venue to another is not going to be that much of a challenge because ये IPL में वैसे भी करते ही है। But do you think कि IPL की वजह से all the other players also are from the other teams, they are also kind of used to that challenge for them? Like अगर एक वर्ल्ड कप होता है तो going abroad and playing in the World Cup, वो चैलेंज थोड़ा सा कम हो गया ऑफ नॉट नोइंग व्हाट द पिच विल बिहेव। मतलब यू आर स्लाइटली फेमिलियर टू द कंडीशंस, मे बी नॉट सो मच द पिच, बट एटलीस्ट द कंडीशंस और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट सिटी, वो थोड़ा सा फेमिलियरिटी आ गया है बाकी सारे टीम्स में भी, मे बी नॉट पाकिस्तान बट अदर टीम्स। पाकिस्तान, अभी अफगानिस्तान के 8 बच्चे आईपीएल में खेलते हैं आउट ऑफ 15, तो दैट शोज कि मतलब ये सब 2-2 महीना खेलते हैं, 2 या 3 महीना आप मान के चलिए करके, और बीच में एक सीरीज आई जाती है, तो वो जो कंडीशन का और पिचेस का मैटर ही गया। देखिए प्रॉब्लम ये भी रहा है ये वर्ल्ड कप, ये सब कह रहे हैं ना स्टेडियम में फैंस क्यों नहीं आ रहे हैं, स्टेडियम खाली है। अब ये पहले ये होता 90s में कि हम मैगरा वगैरह को देखने जाया करते थे, क्योंकि हमको कभी दिखते नहीं थे। अब तो ये 2 महीने आईपीएल ही खेलते हैं, तो वो जो होल एक्सक्लूसिव फैक्टर वो खत्म हो चुका है। जैसे मुझे हम लोगों को 90s में ब्रायन लारा को बैटिंग अगर देखनी है तो आपको सीधा इंटरनेशनल मैच में देखने मिलेगा, नहीं तो आप काउंटी जाए। अभी ये तो आईपीएल या कोई ना कोई लीग चल ही रहा है, तो ये आपको कोई ना कोई खेलते दिख ही जा रहे हैं, तो वो एक फैंस में भी रहता है। पहले जो फैंस की भी एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि किसी प्लेयर को देखना है ग्राउंड पे जाके, वो खत्म हो गया है, ये आईपीएल ने खत्म कर दिया है। तो ये आपको नॉन इंडिया मैचेस आपको खाली ही दिखेंगे, आप भले एक्सपेक्ट कर लो कि स्टेडियम खाली क्यों दिख रहा है, क्योंकि पब्लिक को 9 घंटे शायद अभी नहीं बैठना हो ग्राउंड पे, पब्लिक को 3 घंटा ही ग्राउंड पे बैठना है, doesn't want to spend so much time and energy in the watching these players in the heat. Then by just
to conclude, I think we are nearing the end of today's episode. तो अगर जो एक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेटिंग एनालिसिस करना है तो पहले तो यार पिच कैसी लग रही है? बैटिंग पैराडाइज है कि टर्नर है कि एग्जैक्टली कैसे लग रही है पिच? बैटिंग और स्पिन को ज्यादा हेल्प करेगी मुझे लगता है. स्लो थोड़ा रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान का पेस अटैक भी अच्छा है. दे वोंट पेसर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा. यहाँ पे वैसे भी हल्का स्लो विकेट रहा है और यहाँ पे 3-4 जैसे पिच बना के रखे, लेकिन मेरे को जितना पता चला थोड़ा सा स्लो साइड पे रहेगा ताकि इंडियन टीम को एडवांटेज मिले. Well, all right. I think that was it. For everybody who's traveling to Ahmedabad to watch the games, we know there are a couple of special trains as well from Mumbai going there. So anybody who's traveling there, you obviously, if you reach to this point, you know how to plan your travel, where to go, where to stay, and what precautions to take in the stadiums. This is me, Amit Kamath, saying goodbye. Not just from my behalf, also from my co-host Mihir Vasavda and Deven Pandey, who is going to be, as I mentioned, traveling around with the Indian team from city to city until the World Cup concludes. Yeah, and you can find all of our latest stories, our best reportage in the newspaper or on the Indian Express website. So stay tuned. Thank you so much. You were listening to Express Sports by the Indian Express. This week's show was edited and mixed by Suresh Pawar and produced by me, Shashank Bhargav. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone you think will like it. Share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts and write to us at podcasts@indianexpress.com.